again share my screen. Again, I'm just sharing my screen. Please let me know if it is visible. Visible, guys? Is it visible? हमको कुछ बोलना ही My नहीं. screen visible? Perfect. Fine. So, 1 second. One more thing. Is my screen visible, guys? Please respond. Yes, thank you. मैं कुछ नहीं बोल Okay, रहा. so I was saying, how we can set precondition, how we can set pre-request script in our particular collection. Okay, basically we understood that concept by taking one random number. Okay, so how we can generate one random number? Simply we went to Google and we have searched what? We have searched how to generate random number in JavaScript. And from the first link itself, we have clicked on the first link, and here we have taken one method which is written in JavaScript. Okay, and why we are taking this method, why we are taking this method, basically this method will help us to generate one random number which comes between 1 to 100. Okay, and this total value, this value is stored in one variable, that is x. So what we did yesterday, we had, obviously, after creating one collection, after doing manual test case execution, after uh, basically completing all those topics, we were learning about pre-request script. Pre-request script is nothing but that any condition that we needs to apply before executing the script, we are calling it as pre-request script. Any condition, okay, any condition if we are passing before executing the real script, we are calling it as pre-request script. So how we have executed that request? We just went to pre-request script, and we have just pasted the same the see we have just pasted the same code. Okay, whole code, I have pasted the whole code, see. Okay, and I have just pasted it. And here then I have uh, created one environment variable here. Okay, how I have created? With the help of these snippets. What are snippets? Snippets are nothing but small programming codes which are written in JavaScript language. Okay, so here we have one snippet. If we want to set any environment variable, I will click on it. Okay, and now I am able to see variable key and variable value. What is variable key? Variable key is nothing but what name you are passing for that particular variable. Okay, suppose any name I have given, suppose anything. I have given Modi ji. Okay, and here in value, suppose I want to create one value by taking the mixture of string and number. So first I will take any string. Suppose I have taken a string, um, anything. Suggest me something. Virat. Okay, not Virat, Dhoni. This time we will take Dhoni. Okay, and just because it should be a mixture of string and number, so one string we have taken plus number. What number? This is the code which will help us to generate every time one new random number between 1 to 100, and this code is stored in this variable, that is x. So simply string plus x. Okay, now every time every time if I click on send button, now every time one new repository will get created by some random number. Now I went to body. What I have to paste here, guys? Please tell me what I have to paste here in front of name. What I have to paste here? Please tell me. Come on, please tell me what I have to paste here in front of name. What I have to paste here? Yes, Modi ji. I have created variable name as Modi ji, so I will simply and be very careful with this Modi ji. Okay, fine. Okay, this is the variable which I have created. Now I have used the same variable here. Now if I click on save and send button, every time if I click on send button, see, 201 created. Again if I click, 201 created. You can check in environment, a quick look also. Here no environment is selected. Let me select test environment. Now see, this is Kushagra. If I click on send button, Modi ji will come. See, Modi ji Dhoni 22. Again I will click on send button.
Dhoni 89. Again, if I click on send button, Dhoni 62. If you want to extend, you can pass one more zero here. 1000. अब 1 से लेके 1000 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। मैं वापस सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखो 306 3 डिजिट का आने लगा। अभी अगर मैं यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दूंगा तो और एक डिजिट बढ़ के आने लगेंगे उसमें। देखो अभी यहाँ 306 है, 3 डिजिट है, अभी देखो 4 डिजिट, ये देखो 698। Understanding guys, like this we can create every time new repository, so we will not face 422 status code. Everyone understood? And how many of you have tried in your home? Like how many of you tried in your collections? Please tell me, faced any difficulty? It is very easy. I have I have recorded one video also for your reference, so you can take help from that video. How many of you, please tell me guys? If I'm putting a little bit effort, just because it is online, it doesn't mean that sir will come and he will train us again. No, don't think like that. Okay, you have to make this thing possible, that you have to understood all those topics even if I'm taking online sessions. Okay, fine. So now I guess everyone is able to do that, whoever has tried. Now fine. So we understood the concept of pre-request script also, but if you have focused, while doing such operation, one small mistake which I haven't told you yesterday intentionally, one small mistake we are doing, like this is not a mistake but some kind of error we are getting. Whenever we are creating any repository and we are giving pre-request script, please listen here guys very carefully. Whenever we are creating any repository and using this random number concept and everything, okay, and we are giving precondition in tests, not every time we are getting same test results 6 by 7, not 7 by 7. Even if response time is also passed, every time our repo name will get failed. क्यों ऐसा, क्यों हमारा रेपो नेम हर बार फेल क्यों आएगा? क्योंकि हमने एनवायरमेंट्स में यहाँ पे देखो रेपो की क्या वैल्यू दी हुई है, करंट वैल्यू क्या है, विराट कोहली। लेकिन हम ये जो एग्जैक्टली में हमेशा जो रेपोजिटरी क्रिएट हो रहा है वो क्या, धोनी 2177। तो एक बार समझने की कोशिश करना कि हमारे लिए पॉसिबल होगा क्या, हमको कैसे पता रहेगा, क्योंकि हम तो हर बार सेंड करेंगे एक नया कोई रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखो अब धोनी 6856, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये धोनी 6856 ही आना है, तो मैं क्यों जाके अपडेट करूंगा? समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या? तो हमेशा ये हमारा जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो तो हमेशा फेल ही रहेगा, करेक्ट? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये जो हमारा फेल हो रहा है हर बार, रेपो नेम कभी भी इक्वल नहीं हो पा रहा है, हमेशा फेल ही होगा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे आप जब टेस्ट में आओगे तो यहाँ पे ही आपने रेपो नेम, प्रॉब्लम समझ में आएगा इस पहले, फर्स्ट लेट मी नो एवरीवन अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे। हर बार हमारा ये जो टेस्ट है ये फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा रेपोजिटरी की करंट वैल्यू दी गई है वो तो विराट कोहली है, लेकिन जो हमारा रेपोजिटरी हर बार क्रिएट हो रहा है रैंडम नंबर से, वो तो धोनी हमें से। खुद नहीं पता रहेगा कि अगला रेपोजिटरी कौन सा क्रिएट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो टेस्ट रिजल्ट है ये तो हमेशा फेल होगा ही। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एवरीवन? हाँ। अंडरस्टूड? एटलीस्ट प्लीज टेल मी फर्स्ट, अंडरस्टूड द प्रॉब्लम और नॉट? प्रॉब्लम समझ में है कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, करेक्ट? ठीक है, प्लीज रेस्पॉन्ड करते रहना मेरे को, नहीं तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, या फिर मैं, आप लोग मतलब मेरी आवाज नहीं सुन सकते, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। ओके, नाउ रिपीट कर जी। ओके ठीक है आशीष, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे हम ये वैलिडेशन, यहाँ पे हम स्निपेट्स के हेल्प से हम वैलिडेट कर रहे हैं सारे अपने रेस्पॉन्सेस जो हमको सर्वर से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फोकस करना, पहले हम लोग बॉडी में सिंपली वेरिएबल का यूज करते या फिर नहीं भी करते, हम लोग सिंपली यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते। अब हमको पता रहता कि भाई हमने अगर विराट कोहली के नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो हमने अगर उसको मतलब सॉरी, हमको अगर विराट कोहली के नाम का रेपोजिटरी क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली हम जाएंगे और जाके अगर हमने विराट कोहली के नाम का रेपोजिटरी जो है वो वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, तो हम यहाँ पे जाके उसकी करंट वैल्यू
चेंज कर देंगे। अब अगर हमको दूसरा कोई वेरिएबल कोई दूसरी रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, जैसे अगर हमको धोनी की करनी है, केएल राहुल, कोई भी मतलब स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, किसी की भी रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, किसी की भी रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, तो हमको यहाँ पे पता रहता है कि हाँ भाई ये रिपॉजिटरी क्रिएट हुई है, अब इसी को फेच करना है, तो मैं जाता हूँ और टेस्ट एनवायरमेंट्स में जाके वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमको हमेशा से पता रहती थी। लेकिन अब जब हम रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करके कोई रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हैं ताकि 422 ना आए, ठीक है, ताकि 422 ना आए, और हम जब रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट करके रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको खुद नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे जो रिपॉजिटरी क्रिएट होनी है वो कौन सी होनी है, क्योंकि मैं कितने बार भी सेंड बटन दबाऊंगा तो हर बार एक नई वैल्यू आएगी 2119। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि यही वैल्यू है? ठीक है, तो मैं इसको वैलिडेट कैसे कर पाऊंगा? अगर मुझे इसे वैलिडेट करना होगा तो फिर मैं टेस्ट में जाके यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या डालूंगा। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको तो पहले पता रहता था कि हाँ भाई हमने अगर रिपॉजिटरी क्रिएट की है विराट कोहली के नाम की, तो इट मीन्स हमको वही वैलिडेट करनी है। लेकिन अगर हम रैंडम नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे वैलिडेशन करेंगे? देन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस? फिर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिपॉजिटरी है? हमको तो नहीं पता चलेगा ना कि क्या है पे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम मोदी जी डाल देंगे, ठीक है, बट दिस थिंग इज ऑल्सो, चलो एक बार इसमें मोदी जी डाल के देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डालते हैं, मोदी जी। ठीक है, मोदी जी, वन सेकंड। मोदी जी, अब ये एक वेरिएबल है, करेक्ट? तो यही है ना, मोदी जी। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, अगर इसको उसके स्ट्रिंग में करना है, क्या करना है बताओ मेरे को? ये देखो, अगर इसको मैं कैसे भी बोलो वैसे कर दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो, अगर इसको डबल कोट्स में डालना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट पे हमने लिखा है। ठीक है, और इसको ऐसे लिखना सही है, क्योंकि एक मोदी जी वेरिएबल है, तो मैं ऐसे वेरिएबल को मैं करली ब्रेसेस से कॉल किया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यही आप लोग का सोल्यूशन। चलो सेव करते हैं, सेंड करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। couldn't evaluate the टेस्ट स्क्रिप्ट। टेस्ट स्क्रिप्ट को ही इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी किया है, कोई भी हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, और हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, अगर आप लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो स्निपेट्स पे, तो यहाँ पे आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग गाइस? ठीक है, तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, आप लोग के हिसाब से मैंने करके देखा अभी कि आप लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे नेम इक्वल टू विराट कोहली रहता था, तो अब आप मोदी जी यूज कर रहे हो, तो जाके यहाँ पे मोदी जी डाल दो तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हमको क्या सिंटैक्स एरर आ रहा है। ठीक है, अब कुछ भी कर लूँ मैं, मेरे को यही एरर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली वही पहला वाला डाल देता हूँ। ठीक है, 6/7। ठीक है, ये हमेशा आपका फेल ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम समझ में आई गाइस? एवरीवन नाउ अंडरस्टूड प्रॉब्लम? ओके, नाउ अब इसका सल्यूशन क्या होगा, इसका सल्यूशन क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई कि यार हमारा वैलिडेट करते टाइम हमेशा फेल हो रहा है, तो इसका सल्यूशन क्या होगा ये समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक और स्निपेट्स है। जैसे हमने यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में क्या किया था, एक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया था, मतलब हमने एक एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था, सेट किया था। अब हम टेस्ट में आते हैं। ठीक है, टेस्ट में आते हैं और यहाँ पे आके एक हल्का सा स्पेस दिया, और यहाँ पे आके अब मैं उस एनवायरमेंट वेरिएबल को गेट करूंगा। गेट सेट मेथड जावा में भी, लेकिन खैर वो अलग है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल क्रिएट किया था। अगर हमको ऐसे मतलब टेस्ट्स में, पोस्टमैन में अगर हम काम कर रहे हैं और टेस्ट्स में या फिर प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में कोई हम पार्टिकुलर एनवायरनमेंट वेरिएबल बना रहे हैं, तो वो यहीं पे हम बना पाएंगे, उनका यूज हम यहीं पे कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मेरे को कोई वेरिएबल को कॉल करना है, तो मैं करली ब्रेसेस से कॉल नहीं करके क्या करूंगा, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल।
ठीक है, क्या करूंगा मैं गाइस, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। अब मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करूंगा। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था, अगर मेरे को कॉल करना है तो मैं स्निपेट्स का यूज करता हूँ, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि भाई कौन से वेरिएबल को कॉल करना है, तो मैं बता दूंगा। अभी मेरे को कौन से वेरिएबल को कॉल करना है, प्लीज टेल मी, धोनी। कम ऑन गाइस, मेरे को कौन से वेरिएबल को कॉल करना है, धोनी। कौन से वेरिएबल को कॉल करना है? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था, अभी मेरे को कौन से वेरिएबल को कॉल करना है, यू प्लीज टेल मी, मोदी जी, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने मोदी जी के नाम से एक वेरिएबल सेट किया था, उसी को भी अब मैं गेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोदी जी। ठीक है, ये मेरा हो गया वेरिएबल की जो मैंने वहां पे क्रिएट की थी, वही सेम वेरिएबल की मैंने यहाँ पे कॉल कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्लीज लिसन हियर, प्लीज वेरी केयरफुली। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, अब मैं मोदी जी को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, मोदी जी को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र इज इक्वल टू, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि मोदी जी तो एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पे क्रिएट हुए थे। ठीक है, मोदी जी को पहले मैंने कॉल किया, कैसे, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल से, फिर मोदी जी को ही मैंने स्टोर कर दिया नरेंद्र के अंदर। अंडरस्टैंडिंग गाइस? ठीक है, अब मोदी जी को ही मैंने कॉल कर दिया कहा, नरेंद्र के अंदर। अब मैं सिंपली यहां जाऊंगा और नेम इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, नरेंद्र। ठीक है, हमको करली ब्रेसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है यूज। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रेसेस हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हम यहाँ बॉडी में या फिर यूआरएल में ऐसे हम करली ब्रेसेस का यूज करके वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट जहाँ पे हम कोडिंग पार्ट होता है हमारा, ऑटोमेशन पार्ट या फिर कुछ भी ये सब जावा स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, यहाँ पे हम करली ब्रेसेस के हेल्प से वेरिएबल को कॉल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या, या तो कोड लिखेंगे या तो हम ये स्निपेट्स जो स्मॉल प्रोग्रामिंग कोड्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उनका यूज करके हम वेरिएबल को कॉल करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल को कॉल किया, कैसे, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था, मैंने मोदी जी का वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे दे दी कि भाई मैं वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ, मोदी जी वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ। अब इस वेरिएबल को मैंने एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, इस वेरिएबल को मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया, नरेंद्र। अब वही सेम वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 6/7। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम फेल हो रहा है, अभी एक बार और क्लिक करता हूँ, अरे चल हो गया, रेस्पॉन्स टाइम फेल हो रहा है, लेकिन ये देखो मेरा रेपो नेम है वो हमेशा अब पास हो गया। पास होगा। अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड? वन मोर टाइम आई विल रिपीट, डोंट वरी, अगेन आई विल रिपीट, नाउ लिसन प्लीज केयरफुली। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। स्टार्टिंग से एक बार करता हूँ रिपीट। ठीक है, स्टार्टिंग से, यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट से भी हटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ, डोंट वरी। I know you guys taking it as little bit like you're facing little bit difficulty in this in this part of API testing, but it's okay. I will repeat it. I will make sure that you're understanding. Now, फिर से यहाँ पे प्री कंडीशन अगर मुझे कोई देनी है, ठीक है, प्री कंडीशन मेरे को देनी है, मैं एक ऐसी प्री कंडीशन देना चाहता हूँ कि जब भी मैं रेपॉजिटरी क्रिएट करूँ तो हर बार मेरी एक नई रेपॉजिटरी क्रिएट करके आए। तो उसके लिए मैं यहाँ एक प्री कंडीशन दूंगा ताकि हर बार जब भी मैं रेपॉजिटरी क्रिएट करूँ तो एक मेरी नई रेपॉजिटरी क्रिएट हो। तो वो तभी पॉसिबल है अगर स्ट्रिंग प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली हम कोई भी रेपॉजिटरी क्रिएट करते हैं, जैसे हमने रेपॉजिटरी क्रिएट की कुछ भी, खान, खान सर। ठीक है, रेपॉजिटरी क्रिएट की, सेव किया, सेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को 201 क्रिएटेड मिलेगा, लेकिन मैं सेंड करूंगा तो मेरे को 422 मिलेगा, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है गिटहब की। तो अब यहाँ पे मैं देखा, अगर मैं खान सर के आगे 1 लगा दूंगा, ठीक है, तो मेरे को 201 क्रिएटेड मिलेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो भी मेरे को रेपॉजिटरी क्रिएटेड मिलेगा, मतलब, लेकिन अगर मैं सेंड करूंगा वापस से तो 422 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस से 1 2 ऐसे कर दूं
तो वापस से मेरे को क्रिएटेड मिलेगा। मतलब मैंने ये समझा इस चीज़ से कि ये स्ट्रिंग प्लस नंबर के कॉम्बिनेशन अगर मैं ट्राई करूँगा तो मेरे को 422 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं प्री कंडीशन में गया और अब जाके यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा। कैसे करूँगा? जाऊँगा गूगल आंटी से बोलूँगा कि भाई मेरे को जावास्क्रिप्ट में नहीं आता है, मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दो। ठीक है? तो गूगल आंटी से पूछता हूँ कि मेरे को एक मेथड बताओ जिससे मैं रैंडम नंबर जनरेट कर सकूँ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। तो मैं पहली लिंक पे गया और यहाँ पे ये पूरे कोड को, ठीक है, कॉपी कर लिया। ये जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए 1 से लेके 100 तक के बीच में। ठीक है, इस कोड को मैं कॉपी किया, वापस से लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी पूरी एक वैल्यू है जिसके हेल्प से मैं 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर क्रिएट कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। और ये पूरी जो वैल्यू स्टोर है किसमें है? स्टोर है एक्स। ठीक है, मतलब कि हर बार अगर मैं ये कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो हर बार 1 से लेके 100 तक के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, कुछ भी होगा, 52, 23, 45, 86, कुछ भी रैंडम नंबर 1 से लेके 100 तक के बीच में जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कोड मैंने लिखा। अब क्या किया, मैं एंटर बटन दबाया। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे अगर यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं स्निपेट्स का हेल्प लेता हूँ। उस स्निपेट्स में हमारे पास है सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल को मैं क्रिएट करना है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल यहाँ पे नेम दे दिए, सपोज वेरिएबल नेम दे दिए, वेरिएबल नेम एनीथिंग, सिंह जी, something, anything, no यार, this is Q spiders. This time I will give Q spiders. ठीक है, वेरिएबल नेम आई हैव गिवन Q spiders। ठीक है, अब वैल्यू में कुछ भी दे दिया, स्ट्रिंग प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन मेरे को ट्राई करना है। तो मैं स्ट्रिंग प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन ट्राई करना है तो मैं दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्टूडेंट। ठीक है, अब प्लस नंबर, ऐसा नंबर जो हर बार नया जनरेट होके दे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गूगल आंटी से कोड मांगा था। गूगल आंटी ने हमको कोड दिया था 1 से लेके 100 तक के बीच में। ये पूरा कोड किस में स्टोर है? एक्स में स्टोर है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग प्लस नंबर, नंबर कौन सा? एक्स। ठीक है, एक्स क्यों? क्योंकि एक्स के अंदर ही ये पूरा कोड स्टोर है जो हमको 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, हमने इसको भी कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर एक वेरिएबल सेट कर दिया, हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैं वापस से बॉडी पे जाता हूँ। ठीक है, बॉडी पे जाता हूँ तो अब यहाँ पे गाइस मैं क्या कॉल करूंगा? किस वेरिएबल को कॉल करूंगा? जो हमने प्री कंडीशन में क्रिएट किया था। हमने प्री कंडीशन में कौन सा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है? क्यू स्पाइडर के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है? स्टूडेंट प्लस कोई भी एक रैंडम नंबर। ठीक है, तो मैं बॉडी में जाता हूँ, सिंपली पहले डबल कोट्स लगाता हूँ, क्योंकि डबल कोट्स नहीं लगाऊंगा तो मेरे को 400 बैड रिक्वेस्ट आएगी, मतलब जेसन फॉर्मेट मैं सही से फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने पहले डबल कोट्स लगाए, फिर डबल कोट्स के अंदर मैंने करली ब्रेसेस लगाए और जो भी मेरा वेरिएबल था मैंने उसे कॉल किया। ठीक है, क्यू स्पाइडर्स यहाँ पे मैंने किया था क्रिएट। ठीक है, ये वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया। अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ तो जितने बार भी सेव करके सेंड करूँगा तो हर बार मेरे को एक नया 201 क्रिएटेड आया। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो स्टूडेंट 22, अब 1 से लेके 100 तक के बीच में आएगा। ये देखो 22 है, ये 66 आया। 1 से लेके 100 तक के बीच में ही आएगा क्योंकि हमने वैसा कोड लिखा है। 55 आ गया, फिर से सेंड करता हूँ, ये देखो 92 आ गया। अब अगर मुझे अपनी लिमिट एक्सीड करनी है तो मैं एक जीरो ऊपर लगा दूंगा, तो मतलब अब 1 से 1000 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होके आएगा। अब देखो 3 डिजिट का आएगा, 370। एक और सेंड करता हूँ, 331। ठीक है, अब अगर मुझे और भी अपना डिजिट बनानी है, एक और जीरो बनानी है, तो 1 से लेके 10,000 के बीच में आएगा। तो देखो अब 3 नहीं, अब 4 डिजिट आएगा, 8310। ठीक है, तो ये हो गया प्री कंडीशन का कॉन्सेप्ट। प्री कंडीशन के कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि हमने एक रियल स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले एक ऐसी कंडीशन दे दी कि हर बार हमको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा ये। ठीक है, हमने यहाँ पे आके कोडिंग करी प्री कंडीशन में, तो हर बार हमको हमारी रियल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने से पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करके मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये हमने किया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमारा टेस्ट रिजल्ट्स फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे बॉडी में नेम है, नेम इज इक्वल टू क्यू स्पाइडर्स है, लेकिन जो हमारा टेस्ट में हमने वैलिडेशन करते टाइम दिया है वो नेम इज इक्वल टू क्या दिया है? विराट कोहली। ठीक है, तो इसीलिए ये फेल हो है। ठीक है, अब मैं विराट कोहली की जगह
अगर क्यू स्पाइडर्स डालूं तो ये क्या काम करेगा? क्योंकि मैं किसी भी वेरिएबल को अगर मुझे कॉल करना है तो यहाँ पे तो मैं करली ब्रेसेस के हेल्प से कॉल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं करली ब्रेसेस के हेल्प से नहीं कॉल कर सकता हूँ। और ये एक वेरिएबल है और मैं अगर इसको डबल कोट्स में डालूंगा तो फिर तो ये इसको स्ट्रिंग ही समझेगा। जो पोस्टमैन है वो तो उसको स्ट्रिंग ही समझेगा। तो ना ही तो मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस के हेल्प से वेरिएबल कॉल कर सकता हूँ, ना ही मैं इसको ऐसे डबल कोट्स देके स्ट्रिंग बना सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूं? अब ये सोल्यूशन क्या होगा? ये तो नहीं तो हमेशा फेल होगा वैलिडेट करते टाइम। तो इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा कि जब भी मेरे को वेरिएबल क्रिएट करना था तो मैंने यहाँ पे एक स्निपेट यूज किया, सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, मैंने स्निपेट यूज किया सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ कंडीशन में मेरे को कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है बल्कि कॉल करना है। तो इसीलिए जब मुझे कॉल करना रहता है तो यहाँ पे एक मैं स्निपेट यूज कर रहा हूँ, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल सबसे टॉप में रहेगा, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। अब जिस भी वेरिएबल को मेरे को कॉल करना है, यहाँ पे मेरे को कौन से वेरिएबल को कॉल करना है गाइस, बताओ प्लीज टेल मी। यहाँ पे कौन से सी हु हैज टेक्स्टेड? आज एपीआई की क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन? आई डोंट गेट दिस, लिटरली आई एम नॉट गेटिंग दिस, these kind of students, let it be. So yes, वेरिएबल की यहाँ पे गाइज मैं वेरिएबल की क्या दूंगा? क्यू स्पाइडर, करेक्ट, क्यू स्पाइडर्स। ठीक है, ये मैं दूंगा। तो सिंपली मैं जाके यहाँ पे वेरिएबल की दे दिया क्यू स्पाइडर्स, क्योंकि मैं क्यू स्पाइडर वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट किया था उसी को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैंने गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल और वो वेरिएबल का यहाँ पे नाम दे दिया। अब इस ओवरऑल इस पूरे वेरिएबल को मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा ताकि मैं कॉल कर सकूं। क्योंकि अभी मैंने भले ही इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया है क्यू स्पाइडर्स को, ठीक है, लेकिन जब तक मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करूंगा तब तक मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसी रीजन की वजह से इस क्यू क्यू स्पाइडर्स को भी मैं एक और वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जे स्पाइडर्स। ठीक है, जे स्पाइडर्स इज इक्वल टू, ठीक है, जे स्पाइडर्स इज इक्वल टू ये पूरा वेरिएबल। तो मतलब ये जो एक क्यू स्पाइडर वेरिएबल यहाँ पे मैंने कॉल किया था उसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया जो कि है जे स्पाइडर्स। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या डालूंगा गाइस? यहाँ पे मैं क्या फिल करूँ? प्लीज टेल मी, यहाँ पे मैं क्या फिल करूंगा? वही जे कम स्पाइडर। ऑन, जे स्पाइडर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं हाँ, क्या फिल करूंगा? जे जे स्पाइडर्स। सी, जे स्पाइडर्स। ठीक है, जे स्पाइडर्स मैंने दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं और सेंड करता हूं। लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। 5/7 स्टिल माय रिपोजिटरी इज गेटिंग फेल्ड। बताओ क्यों? यहाँ पे मैंने अभी क्या गलती है, यहाँ पे मैंने अभी क्या गलती की है कि अभी भी मेरा रिपोजिटरी फेल हो रहा है? मैंने तो एक वेरिएबल को कॉल भी किया, जो मैंने क्रिएट किया था उसको एक और वेरिएबल में स्टोर किया और सेम वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि ये फेल हो रहा है? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? ट्राई टू एनालाइज, try to analyze, because these kind of mistakes you usually will do. Okay, you usually do. That's why I'm asking initially what mistake I have done here. Try to analyze, come on. यहाँ यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया। नेम हमेशा जब भी ऐसा फेल आ रहा है ना तो देखो नेम इज इक्वल टू वैल्यू क्या दी है? जे स्पाइडर्स दी, जे स्पाइडर्स तो सही वैल्यू दी है। तो अब क्या गलती कर रहा हूँ मैं? बताओ बताओ जल्दी, कम ऑन। से यहाँ पे नेम इक्वल टू जे स्पाइडर्स। जे स्पाइडर्स क्या है? एक वेरिएबल है जो कि जिसके अंदर कौन क्या स्टोर्ड है? क्यू स्पाइडर्स स्टोर्ड है। क्यू स्पाइडर एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरी अपनी हमारी रियल वैल्यू, रैंडम नंबर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, जो रैंडम नंबर कॉन्सेप्ट वाली वैल्यू है वो हमारी क्यू स्पाइडर्स के अंदर स्टोर है। क्यू स्पाइडर किसके अंदर स्टोर है? जे स्पाइडर्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली नेम इज इक्वल टू जे स्पाइडर्स, करेक्ट। लेकिन ये वेरिएबल है, अगर हम डबल क्विट्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है, तो लिए मैं यहाँ से डबल क्विट्स लगाता देता हूँ, तब ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर डबल क्विट्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग। तो इसीलिए पोस्टमैन उसको स्ट्रिंग की तरह काउंट कर रहा था। अब मैंने वो डबल क्विट्स हटा दिए। अब मैं सेव करता हूँ
So what I will get 6 by 7. The repository name is past. My repository name is past. सबसे पहले मैंने वेरिएबल को कॉल किया, इस वेरिएबल को वेरिएबल में स्टोर किया, फिर इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। लेकिन कभी भी हम डबल क्विट्स नहीं लगाएंगे, अगर लगाए तो क्या हो जाएगा वो स्ट्रिंग। एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? Any doubts, query in this pre-condition, post-condition? Please respond. Everyone, I'm asking from everyone. Please respond. It is very important for me to know that. Okay. Ashish, you didn't understood? Do you want me to repeat? Please repeat once more. Okay. हेलो अच्छा डाउट के लिए ओके ओके आशीष then in getting variable थोड़ा एक दोस्त का कॉल आ गया था उधर ही double quits required नहीं 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 एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम ठीक है देखो इसको मैं बता देता हूँ ठीक है now guys please listen very carefully so many times I'm repeating just to make sure that all of you are understanding ठीक है चलो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था ठीक है कोई से भी वेरिएबल बेसिकली हमको अगर कोई सा भी वेरिएबल मेरे को यहाँ पे कॉल करना है अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कॉल करना है तो मैं डबल क्विट से सॉरी करली ब्रेसेस से कॉल नहीं कर सकता हूँ मैं कैसे कॉल करूंगा स्निपेट्स की हेल्प से तो स्निपेट में हमारे पास है गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल मैं इसको क्लिक करता हूँ जैसे ही क्लिक किया ये आ गया ठीक है अब यहाँ पे मैं एनवायरमेंट जो वेरिएबल की है जिस किस वेरिएबल को आपको कॉल करना है मैं किसी भी वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ ओके गाइस किसी भी वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो वन सेकंड नाउ तो वही मैं बता रहा था गाइस कि अब मुझे अगर कोई भी वेरिएबल को कॉल करना है पोस्ट कंडीशन में ठीक है तो मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस से कॉल नहीं कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ स्निपेट्स तो स्निपेट में मैंने क्या यूज किया गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से वेरिएबल को आपको गेट करना है मतलब कॉल करना है ठीक है तो मैं बोला कि जो भी वेरिएबल कोई भी वेरिएबल को मैं कॉल कर सकता हूँ सी मेरे पास कितने सारे वेरिएबल है मेरे पास है ओनर है रेपो है ये कुशाग्र है मोदी जी है क्यू स्पाइडर्स है मेरे को किसी भी वेरिएबल को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ लेकिन मैं क्यू स्पाइडर्स को ही क्यों कॉल कर रहा हूँ क्योंकि क्यू स्पाइडर्स में ही अभी फिलहाल ठीक है मैं क्यू स्पाइडर को ही क्यों कॉल कर रहा हूँ क्योंकि क्यू स्पाइडर में ही मेरी ये जो रैंडम नंबर की वैल्यू है वो स्टोर्ड है ठीक है इसलिए मैं क्यू स्पाइडर को कॉल करूंगा ठीक है मैं चाहूँ तो किसी को भी कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे रेपो ओनर मोदी जी कोई भी किसी को भी कॉल कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरी जो अभी फिलहाल की रैंडम नंबर की जो वैल्यू है वो किस में स्टोर्ड है क्यू स्पाइडर्स में तो इसलिए मैं क्यू स्पाइडर्स को कॉल किया अब क्यू स्पाइडर्स को कॉल करने के बाद ये एक वेरिएबल ऐसा है जिसके अंदर मेरी रैंडम नंबर की वैल्यू स्टोर्ड है अब इस जो ये जो वेरिएबल है इसको भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा कैसे सिंपल जे स्पाइडर्स कर दिया इज इक्वल टू ठीक है अब इज इक्वल टू मतलब जे स्पाइडर्स के अंदर स्टोर हो गया क्यू स्पाइडर्स मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया और क्यू स्पाइडर को ही यहाँ पे दे दिया नहीं तो वापस से वो मेरे को एरर ही आता फेल ही आता इसलिए मैंने क्या किया क्यू स्पाइडर्स को कॉल किया क्यू स्पाइडर्स को कॉल करने के बाद किस में स्टोर कर दिया जे स्पाइडर्स के अंदर अब मैं नेम इज इक्वल टू देता हूं अब मैं नेम इज इक्वल टू देता हूं क्या 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 देना है मुझे यहाँ पे जे स्पाइडर्स ठीक है जे स्पाइडर्स अब अगर डबल क्विट लगा के देता तो उसे स्ट्रिंग कंसिडर करता पोस्टमैन लेकिन मैं इसलिए डबल क्विट्स नहीं लगा रहा हूँ मैं सिंपली दे रहा हूँ जे स्पाइडर्स अब ये जे स्पाइडर एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्यू स्पाइडर का वेरिएबल स्टोर है और क्यू स्पाइडर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है रैंडम नंबर का पूरा जो भी वैल्यू है वो स्टोर है ठीक है अब मैं इसे सेव करता हूँ और सेंड करता हूँ तो हमेरा मेरा हमेशा में जो रिपोजिटरी रहेगा वो हमेशा मेरा oh my god spiders what I'm doing wrong here guys please tell me स्टूडेंट क्या कर दिए ठीक है वो तो
What I'm जिस doing स्पाइडर wrong को कॉल here, करिए। wrong here, wrong here. What exactly I'm doing now? Come on, tell me what I'm doing wrong here. You guys have to help me. Those who have got to know. इन्वायरमेंट Wait a वेरिएबल minute. आपने नहीं बनाया था, उसको बनाइए। और जो पहले रिक्वेस्ट वैल्यू था उसको पुट करिए। एंड देन जो हमने वेरिएबल सेट करा था उसको कॉल करना होगा, rather than कि आपने जो वेरिएबल इंसर्ट किया था। हाँ ठीक है। जे स्पाइडर इज इक्वल टू, उसमें इसको स्टोर करा दिया, अब इसको कॉल करेगा जे स्पाइडर। ठीक है, फाइन, Now, every हो time गया। if I click on send button, my repository name will be passed. ठीक है, यहाँ बस पे देखो हमेशा ये pass. Q spiders एक ऐसे वेरिएबल को मैंने कॉल किया, get an environment वेरिएबल, Q spider नाम दे दिया वेरिएबल का जिसके अंदर मेरा रैंडम नंबर की वैल्यू स्टोर्ड है। फिर इस Q spider को मैंने स्टोर कर लिया J spider में और J spider को मैंने यहाँ पे कॉल कॉल कर कर दिया। दिया। Very simple. Now you guys got to know. Everyone, please tell me. Saurabh, is it clear? Okay, fine, fine. So now, fine. So now we understood so many things in this class. See, guys, now let's just have a quick recap of of what we have learned throughout the session. Okay, just going to one sec. Let's have a quick recap. See, so many things we have learned, and yes, see, if you can see types of software applications we have learned, architecture of web application, web URL, XML, JSON, web services and API. These many topics we have learned. Okay, advantages of web services, HTTP structure, prerequisites for API testing, Postman tool, how to read the Swagger. Swagger document is nothing but API document. CRUD operations on pets, GitHub, create operation on the repository, how to write an API test case, manual test case execution we did, validation using snippets, that is tests we did, precondition pre-request script we did. So till here we have learned. Okay, till here we have learned throughout the session. Now last two topics are remain. So today we are going to finish this class for Postman. So today we will finish the topics of Postman. Okay, so the last topic is remaining. Okay, so the last topic is left. Okay, so now let's finish that also. This is very important topic. Okay, now we got to know how we can create a collection, creating a workspace, adding request, writing, creating body. Okay, giving pre-request a script, giving tests, using variables in Postman. So many things we have learned. Okay, now at the end I'm going to tell you very important topic, that is request chaining method. This is also very important question, interview question. Okay, request chaining method or request chaining process. Request chaining process, what do you mean by this process? Let's see what we mean by this process. ये होता क्या है request chaining process? Whenever whenever we are sending multiple requests to server at a time, we are calling it as request chaining method. ठीक है, जब हम सर्वर को एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे सर्वर को
एक एक करके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। पहले हमने सर्वर को बोला रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए, फिर एक और रिक्वेस्ट ऐड करी, फिर रिक्वेस्ट भेजी, फिर एक और रिक्वेस्ट करी, फिर रिक्वेस्ट भेजी, फिर एक और रिक्वेस्ट करी, फिर रिक्वेस्ट भेजी। यहाँ पे हम एक एक करके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम एक साथ सर्वर को बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजते हैं एक टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस, रिक्वेस्ट चेनिंग मेथड। अंडरस्टूड गाइस थ्योरी पार्ट? ठीक है, ये थ्योरी पार्ट हो गई। ठीक है, रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस क्या होती है, इफ वी आर सेंडिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट टू सर्वर एट अ टाइम एंड वी आर टेलिंग टू सर्वर टू create a repository, now fetch it, then update it, then fetch it, then delete it, then fetch it. So what we are doing, we are sending multiple requests to server at a time. This process we are calling it as request chaining process. Which process guys? Request chaining process. This is also frequently asked questions by interviewers, so please prepare it. Okay, नाउ अब हमने समझा कि थ्योरी पार्ट क्या होती है रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस की, कि हम अगर एक टाइम पे सर्वर को बहुत सारी रिक्वेस्ट दे रहे हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो उसे हम रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस बोल रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें, थ्योरी पार्ट पता चल गई, अब इसको एग्जीक्यूशन सीखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल, फोकस हियर। यहाँ पे आपने एक अपना कलेक्शन बनाया था बढ़िया सा, ठीक है, एक अपना अपने कलेक्शन बनाया था। इसमें आप जाओ यहाँ पे व्यू मोर एक्शंस पे, इसी कलेक्शन में स्क्रॉल डाउन करो, व्यू मोर एक्शंस पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आपको रन कलेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, रन कलेक्शन पे क्लिक करो। रन कलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे देखो, रेपोजिटरी क्रिएट, फेच, अपडेट, डिलीट, क्रिएट डुप्लीकेट रेपोजिटरी, क्रिएट रेपोजिटरी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, रन गिटहब यूजिंग वेरिएबल्स, यहाँ पे बोल रहा है इटरेशंस। ठीक है, इटरेशंस मतलब कितने बार इस पार्टिकुलर कलेक्शन को आपको रन करना है, एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है। मैं बोल रहा भाई मेरे को एक ही बार करना है, उसमें ही मेरे को आराम। ठीक है, बस एक बार मेरे को करना है। अब डिले, डिले मतलब कि हर एक रिक्वेस्ट के बीच में आपको क्या थोड़ा बहुत डिले देना है, क्या थोड़ा बहुत टाइम देना है, क्या कि क्रिएट रिपॉजिटरी, फिर एक सेकंड रुको, फिर फेच करो, फिर एक सेकंड रुको, फिर अपडेट करो, फिर एक सेकंड रुको, फिर डिलीट करो। तो अगर आपको ऐसा करना है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइम दे सकते हो। जैसे मैंने दिया 2, ठीक है, 2000 मिली सेकेंड। ठीक है, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकंड, 2 सेकंड का मैंने यहाँ पे टाइम दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने दे दिया इटरेशंस, एक बार रन कर रहा हूँ, 2 सेकंड हर चाहिए मेरे को, 2 सेकंड रुके हर बार रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड, 2 सेकंड बहुत हो जाएगा, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड रुके तो 1000 मिली सेकंड। ठीक है, अब रिपॉजिटरी क्रिएट करेगा, 1 सेकंड रुकेगा, फिर फेच करेगा, फिर 1 सेकंड रुकेगा, अपडेट करेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं डिले दिया, इटरेशंस दे दिया मैंने, एक बार डिले दे दिया। अब सिंपली अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी होती तो आप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना यहाँ पे एक बार, कि आप यहाँ पे रॉ डेटा भी डाल सकते हो, या फिर आप बाइनरी सेलेक्ट करके कोई फाइल भी दे सकते हो, लेकिन वो फाइल जेसन फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर रॉ डेटा सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर आपको डेटा लिखना पड़ेगा जो भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है, लेकिन आप कलेक्शन रन कर रहे हो तो वैसे ही आप रन कलेक्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 1000 यानी 1 सेकेंड का गैप, और एक बार रन करना है। अगर फाइल आपको सिलेक्ट करनी होती कोई सी डेटा वाली तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते थे, नहीं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, रन गिटहब यूजिंग वेरिएबल्स। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो, पहले रेपॉजिटरी क्रिएट हुई, 1 सेकंड रुका, फिर हुआ, फिर अब 1 सेकंड रुकेगा, फिर हुआ, फिर 1 सेकंड रुका, ये हुआ। ठीक है, देखो एक एक सेकंड का गैप हो रहा है और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक टाइम पे मैंने सर्वर को कितनी सारी रिक्वेस्ट भेज दी, तो एक टाइम पे सर्वर कितनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस वी आर कॉलिंग इट एज रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस। एंड हाउ टू डू अगेन आई विल टेल यू, लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल। सी कैसे किया था मैंने, अपने उस सिलेक्शन पे गया जिसको मेरे को रन करना है, जिसमें मुझे रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस करनी है, उस कलेक्शन पे गया, ये व्यू मोर एक्शंस है, इस पे क्लिक किया, रन कलेक्शन है, इसमें क्लिक किया। अब यहाँ पे बता दूंगा कितने बार रन करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार करना है, एक बार किया, डिले देना है, डिले दे दिया मैंने, 1 सेकंड का डिले दिया। ठीक है, और कर दिया मैं रन गिटहब यूजिंग वेरिएबल्स। रन गिटहब यूजिंग वेरिएबल्स पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो 1 बाय 1, ये देखो 1 सेकंड का गैप ले रहा है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है। सी फाइन, अंडरस्टूड एवरीवन?
how to, what is request chaining process, and how to do request chaining process in Postman. Basically, how to run collection in Postman. Everyone understood? Easy peasy, lemon squeezy. Everyone, please respond. Okay, fine. Thank you. Now, सो ऐसे हम रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये होती है रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस, और ऐसे हम रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं कि यार मैंने रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस तो कर ली, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस कर ली। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये है ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस तो कर ली, और ये मेरे रिजल्ट्स हैं जो भी मेरे रन के हैं, ठीक है, ये मेरे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर मेरा जो मैनेजर है, मेरा लीड है, अगर वो मेरे को बोलेगा कि कुशाग्र तुमने रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस की है, या फिर तुमने जो भी कलेक्शंस पे काम किया है, तुम वो मेरे को लाके दिखाओ, तो मैं क्या अपना लैपटॉप लेके जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा, ये देखिए सर, ये देखिए ऐसे मैंने एग्जीक्यूट किया? नहीं, हम एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करेंगे और रिपोर्ट में दिखाएंगे इसको कि देखो ऐसे ऐसे हमने इसे इसमें काम किया है, ऐसे ऐसे हमने इस पे काम किया है, ठीक है। तो अब हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो भी आज हम इस क्लास में सीखते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में हमने बेसिकली अभी हम दो चीज ही सीख रहे हैं। पहला, ये प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन का तो मैंने रिवीजन दे दिया एक। बेसिकली हमने अभी क्या सीखा, रन कलेक्शन, कैसे हम किसी कलेक्शन को रन करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। और अब हम सीखते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज फोकस, ठीक है। लेट्स लर्न